When a business is buying a property, उन्होंने क्या क्या देखना चाहिए and why should they buy it? Normal commercial real estate is minimum 3 years lock in. How much is LRD का interest rate? Under construction खरीदने के time पे what is the loan financing structure? So that was the idea. Many people ask me about the loan, taxation, and all those things. I do have some understanding about it, but I thought that this video will help the buyer to understand what could be my tax implication, what could be my leveraging financing aspect, and the buying aspect. इस वीडियो के लिए हमारे साथ है सीए ललित वलेचा फ्रॉम एवीए ग्लोबल, जो मनी, फाइनेंसेस, इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन के एक्सपर्ट है। वो हमें बताएंगे कौन कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद सकता है, क्यों खरीदना चाहिए, और रिच पीपल एंड कंपनीज कैसे अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं। ललित वलेचा को हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। I think there are two aspects here. There are multiple aspects. इसके अंदर क्या है कि somebody buys an asset. So pre-leased, somebody is creating pre-lease to sell you a pre-leased property. Yes. So that margin is going to that somebody who is creating that pre-leased. करेक्ट, उसका 8% आपने उसको दे दिया, 8% दे दिया। तो आप जो 1,000 रुपए दे रहे हो या 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो is only for that person's margin to create that pre-lease and sell it to you as pre-lease. You can buy bombshell or also You can buy greenfield also. Greenfield आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी खरीद सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने के टाइम पे what is the loan financing structure? सो अंडर कंस्ट्रक्शन के समय तो ऑब्वियसली यू गो फॉर अ सिंपल लोन, ओके, जो आपके बेसिस पे आपके कमर्शियल रिटर्न कमर्शियल लोन के जो बेसिस पे चलेगा। रेसिडेंशियल में जो फॉर्मूला है 80-20 का, 20% शुड बी द डाउन पेमेंट एंड 80% इज फाइनेंस। सिमिलर कमर्शियल में भी सिमिलर होता है या उसका ये ज्यादा है? सर सिमिलर होता है, वो बैंक टू बैंक नेगोशिएशन आप कर सकते हो। यू कैन टेक हायर लोन्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम कैपेबिलिटी, बिकॉज़ अल्टीमेटली यहाँ पे आपका इनकम देखा जाएगा, बिकॉज़ देयर इज नो एसेट इज नॉट प्री-लीज्ड। करेक्ट, दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी वेयर यू आर गोइंग एंड यू कैन टेक हायर लोन्स आल्सो। यू कुड mortgage the property that you've taken because that's a good asset class, and उसके basis पर 90% तक का भी financing possible है। I have seen 95% also possible happening. It's possible, and with a very good reputed bank. Yeah. Not NBFC. Not NBFC. So you can go for that and then you can get a higher loan. जो business loans है वो आपको कम मिलेंगे, interest rate भी better रहते हैं इसके। It's not as high as a business loan because generally LRD जितना तो नहीं रहेगा, but then how much is LRD का interest rate? Sir, today it is going to be fluctuating, but my understanding is it is around 8.5%. 8.5% is 8.5%. It is what it is going on. And if you take commercial loan, it's more. Commercial loans are higher. Commercial loans can go up to 10% also. Those are slightly high. LRDs are slightly lower. And business loan? Business loan are much higher. Business loans slightly more than that because अभी मार्केट में आपको ही पता है इंटरेस्ट रेट रिलीफ नहीं मिला। जब तक रिलीफ नहीं मिले then the things are different. तब तक टाइम this is the thing. You can obviously take a LAP also, loan on your own loan against property भी करके कर सकते हो। Those are things that are available. Again depend होता है आप salaried हो non salaried हो, because interest rate against dependent on salaried non salaried, the interest rate keeps changing. बैंक्स के जो एक्सपोजर रहते हैं उस बेसिस पे यू कैन टेक द कॉल ऑन टेकिंग द लोन ऑन। बट सो दैट वाज द आइडिया। मेनी पीपल आस्क मी अबाउट द लोन, टैक्सेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। आई डू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, बट आई थॉट कि दिस वीडियो विल हेल्प द बायर to understand what could be my tax implication, what could be my leveraging financing aspect, and the buying aspect. Yeah. And why should I buy is also. Why should I buy तो क्लियर है कि अगर मैं सेकंड देख रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल से बेटर मेरा ये है, why shouldn't I do it? रीट्स भी मेरे ऑप्शन है, मैं रीट्स दे सकता हूँ, बट रीट्स if you have a lower ticket size, it's a better you go for that. अगर हायर टिकट साइज है and you're looking at 60-70 lakhs worth of that, you can look at that. सेल्फ फाइनेंस करना जरूरी नहीं है, फाइनेंसिंग इज अवेलेबल। इट कुड बी वेरियस फॉर्म्स, कमर्शियल लोन हो सकता है, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी लोन हो सकता है, LRD हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्री लीज, नॉन लीज्ड और व्हाटएवर। बेसिस दैट यू कैन डिसाइड। अगेन व्हेन यू आर गिविंग इट ऑन रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेनेंट्स भी देख लो भाई। टेनेंट्स जिसको दे रहे हो, स्टेबिलिटी, क्लास ऑफ पर्सन, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक बेसिक डिलीजेंस तो आप करोगे ही करोगे। और अगर आपको लेना है, you can buy it in your individual name also. I was about to come there. So there are these alternatives where you can buy it in your individual name, or you can buy it in an LLP or a private limited, which then itself can get sold rather than you selling the property. What is better? Sir depend होता है, case to case depend होता है। Give me both the cases. हाँ, both the cases बताता हूँ। अगर आप खुद लेते हो और बेचते हो तो आपको आज के दिन पे पहले तो इंडेक्सेशन मिलता था, अभी तो वो इंडेक्सेशन है नहीं, तो वो तो कोई मतलब that is गॉन। अदरवाइज वी वर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग कंप्लीटली। बट अगर आपने LLP या प्राइवेट लिमिटेड में लिया है, जब आप बेचोगे तो स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट है। लाइक बायर को जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड, द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड, सो दैट्स अ बिगर एडवांटेज। नाउ LLP वर्सेस कंपनी भी देखा, समटाइम्स कंपनी इज बेटर रादर देन एन LLP फॉर द बायर पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ जब बायर खरीदता है वो क्या बोलता है, यार
आई डोंट वांट टू, बिकॉज बायर फंड हो सकता है, वो बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू लुक इनटू बाइंग एन एलएलपी, आई वांट टू बाय अ प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी, बिकॉज हमारे पॉलिसी में हम प्राइवेट लिमिटेड खरीदते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी रहता है। बट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में पैसे अटक जाते हैं कि अगर उसने आपके कितना लोन है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना अप्रिशिएट हो गया है, शेयर ट्रांसफर के लिए कितना आएगा, वो सामने वाला बायर लोन पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट इफ यू ट्रांसफरिंग इट टू फंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, द कंपनी इटसेल्फ गेट ट्रांसफर्ड एंड यू पे योर टैक्सेस ऑन योर नॉर्मल कैपिटल गेन्स, एंड पैसा उधर अटकता नहीं है। और नॉर्मल इनकम पे भी जो टैक्सेस रहता है प्राइवेट लिमिटेड में, टैक्स रेट लोअर है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की टैक्सेशन की बात करो, वहां पे आपको 25%, 25.17% न्यू स्कीम में मिलता है, द लोअर रेट, वर्सेस योर इंडिविजुअल टैक्स रेट व्हेन यू हैव हायर टैक्स ब्रैकेट्स यू हैव 30%, प्लस आपको सरचार्ज भी लगता है, प्लस आपका अगर आप HNI हो, अल्ट्रा HNI हो, आपका टैक्स रेट 42% तक जा सकता है। नाउ कंपेयर 42.17% इंडिविजुअल टैक्सेशन वेयर यू आर मेकिंग हाई इनकम more than 5 crores versus a 25.17% in a private limited. So private limited owning a property in private limited makes a lot of sense for HNIs earning high level of income. It doesn't make sense कि यार आप इंडिविजुअल में करो, कोई मतलब की बात नहीं। और इंडेक्सेशन का कोई अभी आपके ऊपर इंडिविजुअल का जो नए प्रॉपर्टी रहेंगे उसमें रहेगा नहीं, पुराने में आपको मिलेगा, नए में तो आपको कुछ मिलना नहीं है। सो इट इज बेटर दैट यू कंसिडर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन अ प्राइवेट लिमिटेड सो दैट आपका टैक्स रेट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस भी कम रहेगा। एंड सेकंड, व्हेन यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी, व्हेन यू आर सेलिंग इट, यू विल ट्रांसफर द कंपनी, तो स्टैम्प ड्यूटी के भी आपके बेनिफिट्स वहां पे रहेंगे। बिकॉज अगर कंपनी है तो कंपनी में फिर आपको कंप्लायंसेस ध्यान देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको आरओसी रिटर्न करना है, बोर्ड मीटिंग करनी है, रिकॉर्ड्स रखने हैं, शेयर्स डीमैट होने हैं, ऑल ऑफ दैट कंप्लायंस बेसिक रहता है, वो आप कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो देन टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ऑन ऑनगोइंग बेसिस दिस इज बेटर इन अ प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी। एलएलपी इज ऑल्सो देयर, एलएलपी के भी ऑप्शन है, आप एलएलपी में भी होल्ड कर सकते हो, सेम स्टैम्प ड्यूटी के आएंगे वहां पे। बट उसमें भी थोड़ा लॉ चेंज हो गया 3 साल पहले। उन्होंने क्या किया, एलएलपी में जब भी आप एलएलपी ट्रांसफर करते हो, सो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप ओवरड्रॉ कर रहे हो, नाउ द फर्म हैज टू पे द टैक्स। पहले वो रेगुलेशन नहीं था, ये 3 साल पहले उन्होंने लॉ चेंज किया, बोला कि अगर आप एज अ पार्टनर रिटायर कर रहे हो एंड यू आर विड्रॉइंग हायर अमाउंट्स एज कंपेयर टू व्हाट वाज देयर इन योर कैपिटल अकाउंट, देन द एलएलपी हैज टू पे द टैक्सेस, तब आप लूज करोगे टैक्सेस वहां पे। दैट इज व्हाई shifting towards a private limited somewhere for HNIs for saving taxes on the ROI makes lot of sense. But अगर incoming buyer जो है, अगर वो लोन पे प्रॉपर्टी लेने वाला है और आपके प्रॉपर्टी में आ रहा है, देन इट बिकम्स अ स्लाइटली ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज वो लोन पे जब लेगा आपके पास कंपनी में इतना लोन है नहीं, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया और वो लोन का डिस्बर्समेंट हो नहीं पाएगा, और वो लोन ले भी लिया तो आपको विड्रॉ नहीं कर पाओगे आप, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर लोन के कॉम्पोजिशन में अगर आपको फंसना है तो प्राइवेट लिमिटेड समटाइम्स बिकम्स अ प्रॉब्लम, वेयर इन दैट केस यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन दी प्राइवेट लिमिटेड। द मैथ्स इज वेरी डिफरेंट आउट देयर, बट मोटा मोटी अगर HNI के पर्सपेक्टिव से ओनरशिप की बात की और अगर वो साइड में रखा कि वो जो बायर है वो क्या है, owning a private limited entity is better than doing it individually on an ongoing basis. Okay. And LRDs, again, you can do that, the loans are there, all that is available. So commercial property mein appreciation and other things play out very differently as compared to residential. So this is for the investor who is buying the property to rent it to. Yeah. When a business is buying a property, उन्होंने क्या क्या देखना चाहिए and why should they buy it? The reason I'm asking you is कि last year 2024 I had a client जिसने पहला प्रॉपर्टी मुझसे 30 वर्कस्टेशंस का लिया था, and they grew, they came to a saturation. अब ये आ गया, प्लेटो आ गया कि अभी हम लोग इतने पे रहेंगे, तो they came to me for renting an office of 15,000 square feet. I made them understand कि buying is better than selling. मैंने आपका रेंट और आपका EMI मैच करके दे दूंगा, मतलब माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि आप या तो रेंट दो या आप EMI दो। एंड व्हाट वी डिड इज कि एक सेफ बेट के लिए हमने 15,000 के बदले 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर किया, दे बॉट इट, बट इट वाज सो बिग इन देयर हेड कि प्रॉपर्टी खरीदना है, मतलब उनका आउटफ्लो तो उतना ही था, आप रेंट भी भरते उतना ही था, EMI भी, बट दैट मेकिंग इट सो बिग इन देयर ओन हेड कि 25 करोड़ का प्रॉपर्टी, 20 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है वाज टू मच। एंड इट वाज सो सिंपल when they started doing it, they did the entire transaction in 20 days. Yeah, I know that. So इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज है जब आप ये डिसीजन ले रहे हो। पहले तो आपका देखना है आपका टीम साइज, वेदर जैसे आपने आपके केस में एग्जांपल में सैचुरेटेड था, लाइक यू रीच दैट पॉइंट दैट इट्स अ स्टेबल स्टेडी स्टेट कि यार इतने में तो मेरा चलेगा, और मे बी 10-15% का एडिशन होगा, जिसमें आप ऑब्वियसली यूल फैक्टर इन कि मेरे ये रियल एस्टेट विल केटर टू दैट। इसीलिए हमने क्या किया था, 15,000 का रिक्वायरमेंट था, हमने 20,000 स्क्वायर फीट लिया। करेक्ट, तो वो अगर आपने रखा है और 10 साल तक के प्लानिंग के लिए इफ इट इज गुड इनफ, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू बाय अ प्रॉपर्टी। उसमें 2 रीजन है, जस्ट क्लियर, बिकॉज आपका EMI और रेंट ये मैच हो रहा है। आप ये फैक्टर इन करो, आपका रेंट ओवर द पीरियड टाइम बढ़ेगा। आज आपने लिया है, आज मैच कर रहे हो, तो EMI यू आर बिल्डिंग इक्विटी,
अच्छा, और ईएमआई में क्या हो रहा है, आपका अप्रिसिएशन आ रहा है। अब नहीं, एक तो आप यू आर बिल्डिंग इक्विटी प्लस you will be enjoying appreciation. Rental is going to increase. Escalation. So you're going to always deplete your money. Foreign companies think differently. Foreign companies want to be asset light. The reason is asset light because they could move various locations. They are not knowing कि मेरा peculiar size क्या है. They don't want to own real estate. So they get into leasing models. They better take into leasing model because आज 100 है, कल 200 होंगे, कल 300 होंगे, 400 होंगे. We don't know. And that ideal location may not be the ideal location few years from now. That can keep changing. So certain foreign companies would, like GCC जैसे पूना में आ रहे हैं, and most of this will continue to stay on rent only. They will not never get into buying a property because they want to be fungible. They don't want to stay at a place. They don't want to commit for a long period. That's fine. As in when you say not want to commit for a long period, what is long period? Long period for that location. They are committed to. What is the period? When you say long period, at least normal commercial real estate is minimum 3 years lock-in. So 10 years at least. They look at a bet of 10 years. Sir. Very good. They look at a bet of 10 years. They don't look at a short period. They look at यार 10 साल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक short location लेके मेरे को इधर कहाँ से location पे and 10 years is good enough for one investor to buy a property and rent it to that company. Yeah, that is easy. So they find it that easier. And plus क्या रहता है, the property maintenance and other things are also there. The liquidity is there. They don't want to get into those facts. So that is why foreign MNCs buying real estate, very few. There are cases that they have surplus cash available. They're buying real estate out there, but very maybe 10 में से 3 केसेस रहेंगे या 4 रहेंगे. खुद का फैक्ट्री की बात अलग है. खुद का फैक्ट्री लगाना है तो देन मे बी यू टेक अ प्रॉपर्टी ऑन द लैंड ऑन लीज एंड यू बिल्ड ऑन ओन प्रॉपर्टी. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. करेक्ट. बट अगर मैं आईटी स्पेसेस की बात करूं, मैं ऑफिस स्पेसेस की बात करूं, दे वुड नॉट वांट टू इंडल्ज इनटू बाइंग देयर ओन स्पेसेस अनलेस, एज आई सेड, लाइक आपका एग्जांपल था, saturation point, buffers and all of that, and EMI matching the rentals. The EMI taking it on. I asked the client, are you sure कि आपका और ये नहीं आएगा? तो he said कि सलमान भाई, I am done for Pune. Correct. मैं थोड़ा बहुत ये करूँगा. I want to grow in other cities now. Then it's fine. Then it's, I think it's an idealistic decision for them कि clear है भाई मेरा saturation हो गया, plus 15% का buffer लेके identify a place, put the money out there, because आपको EMI का आपको interest का benefit भी मिलना है, प्लस आपको डेप्रिसिएशन भी मिलना है, आपको विन विन सिचुएशन है, और बाद में जब आप आगे जाके आपको बेचना है, अप्रिसिएशन आएगा, दैट इज अनदर. थोड़ा सा इसको एलॉबरेट कर देंगे कि आप क्या बेनिफिट मिल सकता है एज अ कंपनी. सो आपको कंपनी में जो a big company, some MNC coming from outside may not buy it. Yeah. But there are promoter driven companies in Pune, small scale, whose requirement is 10,000 to 20, 30,000 square feet. What they should look at or why they should buy? So again, as I said, रेंट तो देना ही है मुझे. मैंने अगर समझे मेरा 50 लाख रेंट जा रहा है और मेरा 50 लाख EMI है, तो व्हाई शुड आई नॉट पे EMI? बिकॉज मेरा सेल फोन हो जाएगा एंड मेरा प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी होगा. जहाँ की यहाँ पे 50 लाख का रेंट मेरा 50 से 55 होगा, 55 से 60 होगा, 60 का 65 होगा, ओवर द पीरियड बढ़ेगा. नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड इन पुणे इज 5% एस्केलेशन एवरी ईयर. होगा ही 5 to 6%, 7% आपका होगा ही, प्लस डिपॉजिट आपको अलग से देना पड़ेगा. सो एनीवे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक आपका है ही उसके अंदर. ठीक है. प्लस वो 5 साल का लीज है, फिर 5 साल के बाद आपको रिन्यू भी करना, फिर 5 साल के बाद क्या रेंटल आएगा आपको पता नहीं है. नहीं पता है. आपने तो 5 साल बोल दिया, आपने उसने बोला अभी मैंने दिया और 5% एवरी ईयर तू इंक्रीज कर, बट उसके बाद में क्या आपको नहीं पता. जब आप नेगोशिएट करने जाओगे, दैट टाइम व्हाट यू विल गेट, एंड यू वुड हैव क्रिएटेड द इंफ्रा, यू वुड हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग्स दैट यू नीड. पीपल आर कंफर्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन आपका अरेंज है, हायरिंग उस बेसिस पे किया है, एंड 5 साल का डिस्ट्रप्शन आ गया कि उसने बोला नहीं मेरा ये रेंटल नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है, यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ दैट लोकेशन ओनली. Possible. Becomes a big problem. Whereas it's your own property where you are going to continue after that, you don't have to worry about the rent escalations because that's not there. Property maintenance तो आपको either situation में भरना है, common area आपको either situation में भरना है. That's not a differential decision making at all. Only one property tax वाला expense is added, which is very minimal. Which is very minimal. ठीक है, that is the only thing that you'll have to worry about. But I think that is compensated by the appreciation. Your appreciation of the property is far more every year. And you get as the compared to expense benefit and you get also. expense also. तो वो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. अच्छा, एक्सपेंस में बात करते हैं. आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आप नॉर्मल इंटरेस्ट भर रहे हो तो पूरा मिल गया आपको. इंटरेस्ट पूरा चला जाता है. पूरा चला जाता है. डेप्रिसिएशन मिल रहा है, जहां पे आपको प्रिंसिपल पोर्शन आपका रीपेमेंट कर रहे हो उसके जगह पे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है. इन सम केसेस तो इनिशियली में डेप्रिसिएशन विल बी हायर आल्सो. ओके. तो इन इनिशियल ईयर्स में तो हो सकता है आपका रेंटल का आपको 50 लाख ही मिले. अभी आपको एग्जांपल देता हूं, चलो ये एक अच्छा एग्जांपल है. आपको हायर बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे इनकम टैक्स में व्हाइल यू ओन अ प्रॉपर्टी. इफ यू आर पेइंग 50 लाख व्हेन यू ओन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, 50 लाख आप EMI भर रहे हो, तो आप 50 लाख रेंट भर रहे हो, तो आपको पूरा 50 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा एज अ एक्सपेंस. अब आप लोन पे ले रहे हो, ठीक है. अभी लोन पे क्या होगा, समझो 40 लाख आपका इंटरेस्ट है, तो आपको 40 इंटरेस्ट मिल गया. इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन मिलना है 10% है. सपोजिंग 10% के डेप्रिसिएशन के हिसाब से महीने का आपका 50 लाख डेप्रिसिएशन ही आ रहा है, तो आपको कितना खर्चा मिला? 50 लाख डेप्रिसिएशन मिला और 40 लाख आपको इंटरेस्ट मिला.
तो 90 लाख हो गया वर्सेस a 50 lakhs of rent out there. वाओ सो इनिशियल ईयर्स में जब तक आपका लोन चल रहा है एंड लोन का ईएमआई के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, योर इंटरेस्ट इज हायर, ओवर द पीरियड ये कम होते जाएगा बिकॉज आपका इंटरेस्ट एज यू रीपे योर लोन योर इंटरेस्ट विल गो डाउन, डेप्रिसिएशन ऑल्सो ओवर द पीरियड विल गो डाउन. तो समवेयर इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल एटलीस्ट 3 to 4 years या 5 years एटलीस्ट, यू विल बी फार बेटर ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी as compared I think every CFO of a promoter-driven company should put this on Excel sheet हाँ, वो and है. understand Yes. कि what am I gaining in 7 years, 7, 8 or 10 years हाँ, वो देखना है while buying versus renting. राइट. और जो बुक में नहीं आया जिसका आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है बट वो अप्रिसिएशन है, वो अलग है. ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन करके ही यू शुड मेक योर डिसीजन कि वेदर आई शुड ओन इट और लीज इट. So these are two different things. Plus the book value, asset creation. Plus the asset creation. That's always there. And obviously that asset creation आगे जाके भी आपको leverage लेना है, that's available. Because आज के दिन पे अगर आप लोन लेने भी जाओ, प्रॉपर्टीज अगर है तो ही आपको बेटर रेट और इंटरेस्ट सिक्योरिटी वगैरह सब आपके पास कुछ तो है लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से. अदरवाइज दे डोंट लुक एट अदर एसेट क्लासेस. लिवरेजिंग ऑन असेट like a commercial property is far better today. Like you know that buying and taking loans also is Yes. far simpler. Yes. So these are the things I think buying a property for decision making points where I have saturated my team. I know that this is the ideal location. I would want to continue for a duration of time. Appreciation benefits, expenditure benefits in the initial years as compared to a rental is far better. So these are the things that one would bear in mind to buy a property as compared to leasing it. Very good. So